Guys, can you people see me and am I audible to all of you? Let's start now. Avinash is saying yes, okay. Others, I want all of you to let me know. Yes, okay. Great, great. Others also, please let me know. Yes. Okay. Akash is also saying yes. Great. Mohan. Okay. Okay. Yes, yes. Okay, guys. I hope all of you is wonderful, good at your own places. Thank you, Nayat. Okay. So we'll start today's lecture. Well, are we good to go? Okay, we'll. Yeah, it's on auto rotate. Okay. So, guys, we'll start today. Can anybody of you tell me what actually we did in the last discussion when we had? What was the topic? GDP, Mohan call? No, not exactly GDP. It was growth and development. Exactly, Vivek. It was growth and development. Yeah, yeah, yeah. I attended from today, sir. Nayat. No problem, Nayat. We'll repeat on concepts, but basically it was growth and development topic. Okay, Manmeet, got it? Yeah, Riaz is saying growth and development. Okay. Yes, sir. Thanks. Okay, okay. So we have Ritu along with us today now. She was trying to log in. Okay. Okay. Beba, please check here also, along with that. Okay. So now we'll start. Mohan Kaul is saying GDP is growth, HDI is development. Mohan, we know. Wonderful. Thank you. Thank you. Let's start class now. Okay. The topic of today is we'll start about. Let me tell you first what we are going to do exactly. This is a syllabus. ये जनरल इकोनॉमिक्स है. यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स हैं. ये हमारा सिलेबस है. ये 10 मार्क्स कैरी करता है. तो हमने ये टॉपिक जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट ये कर लिया है. मोहन कॉल सिंह वॉइस इज नॉट कमिंग. क्या बाकी सबके साथ भी है? क्या किसी को वॉइस नहीं सुनाई दे रही? Am I audible to all of you? आ रही है. मोहन कॉल यू ट्राई वंस अगेन. ओके, ट्राई टू लॉग इन वंस अगेन. आई एडमिट यू. ओके 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 गाइस. सो ये हमारा जनरल सिलेब वो है. विकास इज हियर. ओके, दैट इज द प्रॉब्लम हियर. ओके ओके. सो ये हमारा सिलेबस है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स है. हमने पहले डिस्कस किया था कि ये 10 मार्क्स कैरी करता है इकोनॉमिक्स. हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट मीनिंग स्कोप डिफरेंट और रेलेवेंस कर लिया है. और पीपल हु आर न्यू टुडे दे डोंट नीड टू वरी. हम इसको फिर से करेंगे, रिपीट करेंगे, बाकियों का रिपीट हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा. और व्हाट मैंने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि अगर ये 10 मार्क्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने होते तो व्हाट आई वुड हैव डन, 10 टॉपिक्स में से सबको एक एक मार्क्स दे देता मैं. इससे क्या होता कि जिसने सारा सिलेबस पढ़ा है ओनली वही पूरा मार्क्स स्कोर कर पाता. ऐसा नहीं होता पिक एंड चूज वाला. तो हम उसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे. विल स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक. ओके गाइस. सो आज हम करेंगे इन्फ्लेशन मीनिंग, टाइप्स एंड इफेक्ट्स. यू कैन आस्क मी कि सर हम डायरेक्ट क्यों पूरा क्रोनोलॉजी में नहीं जा रहे हैं. रीजन बीइंग आई वांट यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स. पहले बेसिक्स इकोनॉमिक्स के और जो हाई स्कोरिंग है अल्टीमेटली हमें सब करना है. तो विल डू इन्फ्लेशन मीनिंग, टाइप्स एंड इफेक्ट्स. मुझे शायद एक बच्चे की क्वेरी भी आई थी एंड शी सेड कि सर हम इन्फ्लेशन करेंगे. तो विल डू इन्फ्लेशन टुडे. इज दैट फाइन विद यू पीपल? Avinash is saying yes. Okay. I hope it is fine with all of you. Manmeet is saying good. Okay. Okay. No issues. We'll do inflation meaning, types and effects. Guys, that is the topic that we're going to discuss today. और आप में से किसी को भी प्रॉब्लम आती है the way if I'm speaking fast, या मैं if you want me to speak in हिंदी ज़्यादा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Let me know in the comment box और chat box में, तो हम करेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? We can improve upon. Okay. So let me come to the okay inflation.
हमने पहले डेमो क्लास में डिस्कस किया, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. व्हाट इज इन्फ्लेशन? ओके, Riaz is saying speak both languages. Okay, guys, inflation is a general increase in the price level of goods and services. Okay, अब opposite deflation है the general fall in the price level of the goods and services. Can bet, you know, if I have to tell you example, एक छोटी सी example दूं. For example, आज I'll take you basic example. यहाँ से ही कोई मोहन कॉल का example लेते हैं. Let's assume मोहन ने आज 10 रुपए के 1 kg एप्पल खरीदे, एंड टुमारो वो वही 10 रुपए मार्केट में जाता है और उसको सरप्राइज बेसिकली कि 10 रुपए से अब आधा kg एप्पल आ रहे हैं. नाउ दिस इज व्हाट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल को हम क्या बोलेंगे बेसिक लैंग्वेज में? ये इन्फ्लेशन. सो अंडरस्टूड व्हाट इज इन्फ्लेशन? बेसिकली हमने वही पैसे रखे, उसी पैसे से आज हम 1 kg एप्पल खरीद सकते थे, लेकिन हम कल गए और कल हमें, और oppositely the value of the currency of R has fallen. Okay, so that is inflation. Is this, ये हमारे आज के लेक्चर का बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है. आई वांट आपको सबको समझ आना चाहिए. आपको बेसिक इन्फ्लेशन की डेफिनेशन समझ आई? द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब गुड्स क्या हो गए? एनीथिंग. हम कोई भी कमोडिटी परचेज करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम सेब खरीदने जाते हैं, हम वाटर बॉटल खरीदने जाते हैं, ये सब गुड्स आ जाते हैं. और सर्विसेज क्या होगी? फॉर एग्जांपल अगर यू गो टू अ डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उस डॉक्टर के पास आप पहले दिन चेकअप के लिए जाते हैं, आज जाते हैं तो उसकी फीस, कल जाते हैं तो उसकी फीस 300 रुपया हो जाती है. तो आप देखते हैं यार इसकी तो फीस बढ़ गई. ये क्या है? इन्फ्लेशन है, जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल. गॉट इट? आप सबको इन्फ्लेशन का मतलब समझ आया? The general increase in the price level of goods and services is called inflation. Is there anybody who didn't understand this thing? और सबको समझ आ गया? Please let me know. मनमीत आपको समझ आया? रियाज okay, good. Diksha wonderful. Vivek great. Yes, okay. Inayat yes, okay. Zakir okay, yes, ठीक है. अब इसी का ऑपोजिट क्या है गाइस? डिफ्लेशन. व्हाट इज डिफ्लेशन? मैं इसको बेसिक आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ. आप यू मस्ट बी हैविंग व्हीकल्स आपके घर पे. सो यू मस्ट बी हैव व्हीकल्स एट योर प्लेसेस. व्हाट हैपेंस? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ टायर का. हम कभी बोलते हैं टायर डिफ्लेट हो गया, टायर इन्फ्लेट हो गया. इन्फ्लेट का मतलब उसमें ज्यादा हवा आ गई और डिफ्लेट का मतलब उसमें हवा कम हो गई है. That is exactly what is happening in the economy. यहाँ पे हवा क्या है? प्राइस है. जब इन्फ्लेशन होगी प्राइस ज्यादा बढ़ गया है, और डिफ्लेशन होगी प्राइस कम हो गया है. Now whenever deflation strikes your mind or deflation comes to, you have to assume, आपको ये assume करना है कि टायर की हवा कम हो चुकी है. Okay? Now there are some people who can ask me कि sir what is good? Okay, अब आप you people can think of with the same example कि टायर में हवा ज्यादा भी अच्छी नहीं है और कम भी अच्छी नहीं है. अगर आपको गाड़ी चलानी है, दैट इज हमारी इकोनॉमी चलानी है, तो हमारा जो हवा है वो प्रॉपर लेवल पे होनी चाहिए. एग्जैक्टली वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी विद द प्राइसेस. ओके, हैव यू पीपल रिलेटेड विद व्हाट एग्जांपल आई हैव गिवन यू? अब आपको कभी भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का पता चले तो थिंक इन योर माइंड अबाउट द एयर इन द टायर. गॉट इट? I don't know how appropriate the example is, but I think I was able to convey what I wanted to. Okay. So deflation is general fall in the price level. Basic example अगर हम दिया जाए, हम अगेन मोहन जाता है मार्केट में सेब खरीदने के लिए, तो आज 10 रुपए से 1 kg एप्पल मिलते हैं. वो दूसरे दिन जाता है एंड वो सरप्राइज हो जाता है कि यार अब तो 10 रुपए से 2 kg एप्पल मिल रहे हैं. What is happening? The prices have fallen. There is a fall in the price level of goods. And for the services, again वो डॉक्टर के एग्जांपल हम लेके चलेंगे कि वो जाता है डॉक्टर के पास और वहां पे जाके वो देखता है कि अगर 250 रुपए की फीस है तो आज 200 रुपए की फीस हो गई है. So there is a fall in the price level. Is deflation clear to all of you? Now is there understood all of you what stagflation was and what stagflation is?
or you people want me to repeat? Repeat, Zakir. Okay, I'll tell again. We'll repeat. Not a problem. Okay. So stagflation is basically when there is a stagnation in the economy. Noise breaks. No problem. That's problem with the internet today. We have to bear with that. With this, I hope we'll come out with this. So let try one to admit yourself once again. Okay, guys. Stagflation is basically when there is a stagnation in the economy. At the same time, there is inflation in the economy. What I was discussing earlier is that normally this does not happen. What happens is when there is inflation in the economy, there is an increase in the price level. और जब increase in the price level होता है, there is a demand of goods and services. Inflation का मतलब क्या होता है कि लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं और उससे goods कम हैं तो prices बढ़ जाते हैं और उससे क्या होता है कि हमें उन goods को produce करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है. So what is happening is basically when there is inflation, there is an increase in employment also. So that's a basic general phenomena that normally happens in the economy. ऐसा normally economy में होता है कि जब भी inflation होती है तब most of the time हम expect करते हैं कि economy में employment भी बढ़ेगी. But stagflation में ऐसा नहीं होता. Stagflation में inflation तो हो रही है but employment नहीं generate हो पा रही है. Unemployment है economy में. इसलिए हम कहते हैं कि we are that's a dry growth what we are undergoing. हमारे यहाँ stagnation है और inflation भी है. अब आप लोगों को समझ आया stagflation का concept क्या है? When there is a stagnation and also inflation in the economy. Okay. Salim, great. Zakir, मोहन कौल आपको समझ आया? अविनाश, रितु, मनीषा, all of you tell me, समझ आया आपको? दीक्षा, great. Diksha, good. अनायत, yes. याकिर, okay. मनीषा, yes. Wonderful. Others, बाकी भी बताओ. रितु, yes. Okay. So Mohan call, yes. Inflation, unemployment, yes. I was expecting Avinash also to write. Maybe he's here or somewhere there. Must be busy. No problem. We'll move ahead. Now there's a concept called reflation. Guys, ये आपका homework है. I'll not tell you this thing. This is what you have to study, reflation. Next time हम आएंगे, I'll ask you people what reflation is. Got it? I'm not going to tell you this thing. You will do this work at your home. Situation boldly brought by government to reduce unemployment and increase demand. Riyaz, you're very much correct, but I want you. Okay, is there anybody along with us? Rishi, Ahmed, Avinash. Okay. So, yep. That is, Riyaz is very much correct, but I want you people to do this homework. आपको ये पता करना है रिफ्लेशन क्या होती है. ठीक है, अब आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता है, आपको डिफ्लेशन के बारे में पता है, आपको स्टैगफ्लेशन के बारे में पता है. अविनाश, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने स्टैगफ्लेशन के बारे में किया कि स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे स्टैग्नेशन भी है और इन्फ्लेशन भी है. आपने पहले लेक्चर पढ़ा है. आई नो यू नो दिस थिंग. यप. सो रिफ्लेशन के बारे में आपको खुद करना, ये आपका होमवर्क है. Next time we'll take lecture. I want you to let me know what reflation is. Riyaz has told me. आप सब भी इस पे होमवर्क कीजिएगा. ठीक है. Now tell me what is deflation. हमने पहले deflation किया है. एक लाइन में मुझे इसका आंसर चाहिए. deflation क्या है? If inflation is an increase in the price level, what is deflation? Decrease in price level. Okay, Avinash. Others also let me know what is deflation. Tanveer is writing decrease in the price level. Good, Tanveer. Mohan, Mukul, fall in price level. Diksha, good. Others also write. Manisha, good. Rishi is writing, yes, general fall in the price level. All of you write. Okay, I want answer from all of you because this way we are going to learn. Ritu, fall in the price level. Yes, good. इसे डिफ्लेशन कहते हैं. अगला कंसेप्ट है हमारा डिसइन्फ्लेशन. गाइस, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है. अगर आपको ये पूछा जाता है व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन, तो आई विल टेल यू इट्स वेरी इजी. डिसइन्फ्लेशन क्या है? फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है,
10% की इन्फ्लेशन है हमारे इकोनॉमी में, 10% से हर साल या हर महीने हमारा इंक्रीज इन द प्राइस लेवल हो रहा है, ठीक है। और इस बार क्या होता है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, वो 5% से हो जाती है। अब आप उसे क्या कहोगे, इन्फ्लेशन तो वो है 5% की है, बट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अब वो कम है, इसे हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन और फॉल इन द inflation but at a slow rate. No, Anayat, you will say a decrease in the inflation, a reduction in the rate of inflation. Exactly, Tanvir. आपको समझ आया आप सबको? अनायत ओके ग्रेट, बाकी सबको? अविनाश यस। और देखो इकोनॉमी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, या आपसे जीडीपी के बारे में नहीं पूछेंगे कितना जीडीपी है हमारा, या कितना मतलब एग्जैक्ट नंबर क्या है, एब्सोल्यूट नंबर क्या है, यही कंसेप्ट आएंगे। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। एग्जैक्टली। अब दीक्षा व्हाट इज योर, आपको समझ आया? दीक्षा, रितु, मोहन कौल, उमंग, ओके यस यस, मोहन कौल यस, ओके गाइस। सो ये हमने कंसेप्ट आज किए इन्फ्लेशन के। अब आपको कोई भी अगर कभी भी पूछे व्हाट इन्फ्लेशन इज, यू नो दिस थिंग, व्हाट डिफ्लेशन इज, यू नो, व्हाट स्टैगफ्लेशन इज, व्हाट रिफ्लेशन इज, व्हाट डिसइन्फ्लेशन इज, यू नो एवरीथिंग गाइस। सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट। ओके, सो ओके, अगला कंसेप्ट है हमारा हाउ डू वी मेजर इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? सलीम इज जॉइनिंग अस। ओके, हाँ, हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं इंडिया में? तो आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है, इंडिया में इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय कौन मेजर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मैंने डेमो क्लास में आप सबने पढ़ा है, और जो न्यू है उनको भी पता चल जाएगा। इट्स बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मैंने पहले भी बोला था, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन सो दैट यू पीपल रिमेंबर दिस थिंग। मोहन कॉल यस सीएस, तो मोहन कॉल दैट सीपीआई। आगे अभी के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू राइट हु मेजर्स इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इन इंडिया, and if you have pen and copy please pen down this thing, ये आपको MCQs आपके आएंगे, Avinash is writing good, Ministry of Statistics and Program Implementation. This exercise जो आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, you will remember it for a longer period of time. Mukul, great Mukul. Manisha is writing yes. Tanveer, SPI, Tanveer, what is SPI? Okay, Statistics and Program Implementation, good, got it. Diksha, Umang, okay, Mohan Kaul, great. Yep, all of you have written, great. Okay, now अब इन्फ्लेशन मेजर करने के डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, ठीक है। और इंडेक्स कौन कौन से हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स है, हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये दो हमारे पास इंडेक्स हैं जिससे हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। हमने पहले इन्फ्लेशन का कंसेप्ट पढ़ा, इन्फ्लेशन होता क्या है, टाइप्स इन्फ्लेशन की। फिर अभी हमने पढ़ा कि कैसे मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन इंडिया में। आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर करता है इन्फ्लेशन को इंडिया में। अब उसके नीचे कैसे करता है, दो हमारे पास इंडेक्स होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI CPI। गॉट इट गाइस? अब WPI CPI क्या होता है? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि आपके घर के पास एक होलसेल शॉप है, एक रिटेल शॉप है। आप लोग कहां से सामान खरीदने जाते हैं कंज्यूमर्स? टेल मी, आई वांट योर आंसर। हाँ, तनवीर रिटेल। सिर्फ तनवीर तो नहीं खरीदता, बाकी भी खरीदते हैं, बताएं मुझे। मोहन ओके, ग्रेट, गुड। दीक्षा, रितु, ऑल ऑफ यू आंसर। अविनाश, गुड। ओके, हम सब, ऋषि वंडरफुल, हम सब रिटेल से सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है। सो आपको रिटेल और होलसेल का कंसेप्ट तो पता है कि होलसेल में थोक के भाव से सामान मिलता है, और मतलब होलसेल उस पे मिलता है, और रिटेल में रिटेल चीजों का सामान मिलता है रिटेल लेवल पे। ओके ओके, गुड। नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली जब हम CPI और WPI की बात कर रहे हैं,
तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग देखेंगे कि होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन क्या है, हम होलसेल का वो देखेंगे, और रिटेल लेवल पे जो हम लोगों को प्राइस मिलते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होलसेल प्राइसेस के बीच में और रिटेल प्राइसेस के बीच में। जब हम रिटेल प्राइसेस को देख रहे हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, और जब हम होलसेल प्राइस पे देखते हैं तो वो वो प्रोड्यूसर तक आ जाता है, और तब हम बोलते हैं वो WPI हम देख रहे हैं। एट प्रेजेंट इंडिया में जो इन्फ्लेशन हम देखते हैं वो किस इंडेक्स को देख के हम डिटरमाइन करते हैं, क्या कोई बता सकता है मुझे? CPI या WPI? Guys, I'm expecting your answer. Please let me know. आज अविनाश is saying CPI, Diksha is saying WPI, Tanveer is saying CPI. Okay, others try make a guess. कोई problem नहीं है. Mohan is saying CPI. Okay, Riaz Umang CPI. Diksha is saying WPI. Okay, Ritu is saying WPI. Okay, no problem. So guys, our house is divided on this thing. Some of them are saying CPI, कुछ कह रहे हैं WPI. I'll correct you. Till 2014 हम WPI देखते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, बट अब हम CPI देखते हैं। गॉट इट? आपको समझ आ गया? अब हम किस पे देखते हैं? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, बिकॉज CPI इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जैक्टली तनवीर, जब हम वो करेंगे वो हम आगे करेंगे, बट एक सबसे ज्यादा इसको डिफाइनिंग डेफिनेशन ये होगी, क्योंकि CPI इज एग्जैक्टली जो प्राइस हम पे करते हैं, जो कंज्यूमर पे करता है। CPI एक डिस्टॉर्शन है और एक डिफरेंस है बिटवीन WPI और CPI में। होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस में डिफरेंस तो है ना। सो एग्जैक्ट प्राइस जो हम पे करते हैं वो CPI, वो रिटेल प्राइस है। गॉट इट तनवीर? आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू। यस ओके। या ये स्क्रीन आप देख सकते हैं। गुड रितु, आपको समझ आ गया? विनाश, तनवीर, सबको? तनवीर आपको समझ आया? ओके। सो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया टिल 2014 अप्रैल तक इन्फ्लेशन रेट वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ WPI। हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखते थे। करंटली इंडिया में इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जिसका बेस ईयर है 2012। ये आगे जाके बताने वाला था मैं, लेकिन सिंस स्लाइड में आ चुका है। आप सबको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि CPI का बेस ईयर क्या है? 2012। Everybody of you write in the comment section base year of CPI कितना है? 2012। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, और सिंस हम करंटली इस इंडेक्स को देख रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बेस ईयर फॉर CPI इज 2012। Okay guys, good. Yep. Base year of CPI is 2012. Mohan call, why? Mohan, this is not decided, and this is exactly beyond our ambit of knowledge also. We don't need to delve deeper into this thing. The government decides। गवर्नमेंट को जब लगता है कि हमारा बेस ईयर, देखिए पहले बेस ईयर 1980s में समथिंग था, अब हमने 2000 CPI बेस 2012 लिया है, बिकॉज वी वांट टू मेजर। ये रिसेंट वाला है कि इसके लेवल। इससे पहले मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली बेस ईयर होता क्या है, ठीक है मोहन? There's nothing to worry about why it is being chosen 2012. That is basically जो हमारे वहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी, जहाँ चीफ इकोनॉमिस्ट, जो चीफ एडवाइजर बैठे होंगे, they must have come out with some. But I'll also see why if there is some reason. I've never encountered this thing. Got it? So no problem. Moving on further, what base year is? बेस ईयर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि मोहन आज 10 रुपए लेता है और 1 kg एप्पल खरीदता है, और कल जाता है और उसको 1 kg के आधा kg एप्पल मिलते हैं। सो उसने क्या देखा कि देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। गॉट इट? नाउ हमने क्या किया, कल के प्राइस को आज के प्राइस के साथ मेजर किया। अब मुझे बताओ, अगर मोहन आज 1 kg एप्पल खरीद रहा है और कल आधा kg, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन है। आधा kg बड़ा है या 1 kg बड़ा है? व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज ओके।
एक, तनवीर बोलता है एक पड़ा है, 1 kg दीक्षा. Okay, I got all of you. You people know one is greater. Akash is waiting. Okay, but you know, अगर मैं आपको बोलूं 100 बड़ा है जो छोटा, तो what would you say? You got it? हाँ, मैं समझ आ गया. Now tell me, 100 बड़ा है या छोटा? Tell me. Great. What's Tanveer? I'm asking you whether 100 is a bigger number or a smaller number. Tanveer is saying big. How? You cannot say this thing. Ritu saying bigger number. नहीं Ritu, we cannot say कि 100 बड़ा नंबर है छोटा है, because मैंने आपको comparison नहीं दिया. Yeah, Mohammed Salim is saying can't say, because until and unless there is a comparison, we do not have a comparison. Exactly, we do not have a comparison. अगर मैं ये बोलूं कि 100 in comparison to 1, तो तभी तो 100 is bigger. Otherwise, in absolute figure, 100 stands nowhere. It could be smaller, it could be bigger. Tanveer, it is bigger. Yes, in comparison to 1, it is bigger. इसी तरह जब हम बोले इन्फ्लेशन रेट, तो उसका मतलब क्या है कि हम ये नहीं बोल सकते कि आज रेट ज्यादा है कम है, जब तक हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करें, और जो जिस साल के साथ हम कंपेयर करेंगे वो हमारा बेस ईयर होगा. किसी को इसमें प्रॉब्लम आई? समझ आया बेस ईयर क्या है? Repeat, sir. Repeat. Tanveer, I'm okay. I'll tell you, Tanveer. Tanveer, the question is, 1000, is it a bigger figure or a smaller figure? Answer me. Okay, Riyaz, you understood. That's good. Tanveer can't say, because we are not making any comparison. You know, कोई बड़ा छोटा rates of 2014 with compared to current. Yeah, exactly. So मैं ये बोल रहा था कि कोई भी बड़ा या छोटा कंपैरिजन से होता है, ठीक है? So 1000 would be a bigger number in comparison to 100, and maybe a smaller number in comparison to 10,000. 10,000 की बात करूं तो 1000 बड़ा छोटा सा नंबर हो जाएगा. So it is always a comparison. उसी तरह इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, जब तक बेस ईयर नहीं होगा, बेस ईयर का मतलब कि जैसे अगर मैं बोलता हूं कि तनवीर के पास आज 100 रुपए थे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि तनवीर की इनकम बड़ी है या नहीं. वो तभी होगा अगर मैं तनवीर की पिछले साल की इनकम पता होगी. पिछले साल अगर तनवीर की इनकम 50 है, तभी तो मुझे पता लगेगा कि उसकी इनकम बड़ी है. सेम गोज विद द प्राइसेस. अगर मैं बात करता हूं आज इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तभी अगर मेरे पास एक बेस ईयर होगा, उस साल क्या प्राइस थे और आज अगर बड़े हैं उसके कंपैरिजन में, तो तभी इन्फ्लेशन है. कम हुए हैं तो डिफ्लेशन. तनवीर, am I, you know, have I been able to understand, make you understand? Tanveer, yes sir, I got, Zakir got it. किसी बच्चे को जो समझ नहीं आया हो, is there anybody who has not been able to understand or comprehend? आप सबको समझ आया? विकास, ओके. उमंग, आपको समझ आया? रितु, मनीषा, मोहन, मोहन ने पहले ही पढ़ा, मोहन आपको समझ आ गया होगा. सलीम, यस सर. अनायत, ओके, ग्रेट ग्रेट. ओके ओके. सो आपको बेस ईयर का कंसेप्ट पता है, तो तभी हम जब सीपीआई की बात करते हैं तो हमारा बेस ईयर 2012 है. तो अब आप लोगों को बड़ा इजीली पता चल जाएगा कि बेस ईयर क्या है, क्यों हमारा बेस ईयर 2012 है और उसका रेलेवेंस क्या है. गॉट इट? एक यहाँ कंसेप्ट है रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ये हम अभी बात नहीं करेंगे, ये आगे बात करेंगे, तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा. ओके. ओके गाइस, नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. अभी तक हमने क्या पढ़ा? इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है, डिसइन्फ्लेशन क्या होती है, रिफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है, हमने ये सब पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा कौन इंडिया में मेजर कर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. हम रिवाइज भी कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है. उसके बाद हमने देखा कौन से इंडेक्स हैं. हमारे पास 2 इंडेक्स थे, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई.
ओके, सीपीआई में हमने देखा कि हमारा बेस ईयर क्या है 2012। ओके गाइस, हमने वो भी देखा। अब हमने देखा बेस ईयर होता क्या है, ये भी आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन के टाइप क्या होते हैं। देखो, इन्फ्लेशन को कैटेगराइज किया जा सकता है डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। एक चीज है कि अगर हम रेट देखें, रेट का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि आज जो प्राइसेस है, या आज जो इन्फ्लेशन है वो 2% से ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वो एक कैटेगरी में आएगा। अगर 2 से 5 हो जाए वो एक अलग कैटेगरी में आएगा, 10% होगा वो अलग कैटेगरी। ये रेट है, क्या रेट है, उस बेसिस पे हम कैटेगराइज करें तो वो इन्फ्लेशन को हम बेस्ड अपॉन द रेट पे हम कैटेगराइजेशन करेंगे। सबसे पहली है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नाउ क्रीपिंग का मतलब, क्रीप का मतलब क्या होता है, क्रीप का मतलब होता है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे स्नेल जो होता है वो क्रीप करता है, वेरी स्लो। ओके, सो उसे हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी में 3% से कम हो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2%, 3%, 4% की इन्फ्लेशन अगर हो इकोनॉमी में, तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। और यहाँ पे लिखा है गुड फॉर द इकोनॉमी। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज गुड? राइट, यस, इफ यू बिलीव दैट क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज गुड, कैन इन्फ्लेशन बी गुड? अविनाश इज सेइंग यस, ओके, यस। इज देयर एनीबॉडी जिसको ये लगता है कि इन्फ्लेशन ठीक नहीं है इकोनॉमी के लिए? मनीषा इज सेइंग यस, ओके, ओके, yes, it gives chance of employment to more people. Okay, Mohan, good. Zakir is asking me, but how? Zakir, I'll answer. Zakir, inflation एक, Tanveer, yes sir, longer run. Okay. Zakir, let me answer you. You are asking me how inflation is good for an economy. Zakir, inflation का मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन की। दैट मीन्स राइज हो रहे हैं बट एक नॉर्मल रेट पे, 2% पे। दैट मीन, एंड हाउ इट इज गुड, लेट्स अज्यूम आपका बिजनेस है, तो आप ऐसा तो नहीं सोचोगे कि हर साल प्राइसेस उतने ही रहे। नाउ डू नॉट कंसीडर यूर एज मोहन जो परचेज करने जा रहा है, कंसीडर योरसेल्फ एज अ सेलर जो एप्पल बेच रहा है ना। उसके लिए अच्छी बात क्या है कि प्राइसेस बढ़ने चाहिए। अब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हम खरीद नहीं पाएंगे, मोहन खरीद नहीं पाएगा। लेकिन तनवीर जो एप्पल बेच रहा है वो तो यही चाहेगा प्राइस बढ़े। तो गुड क्या है, अच्छा क्या है कि प्राइस बढ़े, लेकिन इतने बढ़े कि वो खरीद भी पाए मोहन। ये ग्रोथ दिखाती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली जाकिर, इट शोज ग्रोथ। इकोनॉमी ग्रो करेगी एक अच्छे रेट पे, जो कि हमारा 2-3% हमारा जो होना चाहिए इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी है। विकास इज सिंह सर, आई थिंक इन्फ्लेशन अप टू 4 ऑलवेज इज ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी। यस विकास, यू कैन से हमारा 2 से 4% के बीच में इन्फ्लेशन हमारी अच्छी होती है। ओके, बाकी सबको समझ आया? अनायत, यस, बिलो 4 is good. Yes sir, yes, I mean yes, up to 4 we would say it is good. आप सबको समझ आया कैसे थोड़ी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है? प्राइस राइज होंगे थोड़े तो तब भी तो बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी तो प्रॉफिट होगा, उनको प्रॉफिट होगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो जो वहां पे काम कर रहे हैं। मैं छोटी सी एक एग्जांपल और देता हूँ, थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं इसके ऊपर कैसे इन्फ्लेशन इज गुड फॉर एन इकोनॉमी। हम एज्यूम करते हैं अनायत, ओके, हम एज्यूम करते हैं कि अनायत का एक अपना फार्म हाउस है जिसमें एप्पल है, ठीक है, और अगर इस बार रेट इंक्रीज नहीं होते हैं तो अनायत क्या करेगा? अनायत वुड व्हाट ही और शी वुड डू, वो एम्प्लॉयज को निकाल देगा क्योंकि उसके रेवेन्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं, अगर एप्पल का रेट मार्केट में अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो अपने उनको अपने वर्कर्स को नहीं दे पाएगा। नाउ अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं बहुत ज्यादा लेवल पे, अनायत तो बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश, बट मोहन नहीं खरीद पाएगा जिसने खरीदने हैं, तो उसके एप्पल कोई खरीद ही नहीं पाएगा, तो उसका भी फायदा नहीं इकोनॉमी के लिए। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि कैसे लेवल पे प्राइस एप्पल्स के इंक्रीज हो सो दैट अनायत इज आल्सो हैप्पी एंड मोहन इज आल्सो हैप्पी। सो उसे हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, थोड़े परसेंट के हिसाब से।
अब अगर प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज होते हैं, अनायत को प्रॉफिट होता है तो अनायत वर्कर ज्यादा रखेगा। अब वो वर्कर्स को सैलरीज भी मिलेगी, उनको अगर सैलरी मिलती है तो उनके घर चलेंगे और वो लोग दुकान से सामान लेंगे, दुकान से सामान लेंगे तो दुकान वाले के पास भी पैसा आएगा जो आप लोग खर्चोगे, वो भी अपना घर चलाएगा और वो भी होलसेल वाले से पैसा सामान लेगा। अब होलसेल के पास भी पैसा आ रहा है, उसकी भी इनकम बढ़ रही है, वो भी पीछे फार्मर को देगा क्योंकि उसने तो अल्टीमेटली फार्मर से लेना है। तो फार्मर से जब लेगा तो फार्मर की भी इनकम बढ़ेगी। दिस वे व्हाट इज हैपनिंग, द एंटायर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। विकास कहता है सर आई थिंक इन्फ्लेशन अप टू सम लेवल इज गुड फॉर ग्रोथ एंड इकोनॉमी। यस दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, एम्प्लॉयमेंट होगी, इनकम बढ़ेगी, दैट इज व्हाट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। अब आप सबको समझ आया क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब थोड़ी सी इन्फ्लेशन क्यों इकोनॉमी में गुड अच्छी है? ऑल ऑफ यू टेल मी, आपको समझ आया? And till the time you tell me, I'll have my magic potion. Okay, 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 okay. I hope किसी को डाउट नहीं है। अब हम आगे चलेंगे। सो रेट के हिसाब से जब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगी, जो हमने बहुत डिस्कस किया कि 2 से 4% के बीच में हमारी अगर इन्फ्लेशन होगी वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगी, मतलब इन्फ्लेशन बड़े आहिस्ता आहिस्ता से चल रही है। दूसरा है हमारा ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन या वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये बेसिकली जैसे बच्चा है, पहले वो क्रीप करता है, फिर वो ऐसे थोड़ा थोड़ा गिरता गिरता चलता है, ठीक, उसे हम बोलते हैं वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जो एक वार्निंग सिग्नल है थोड़ा सा हमारे लिए। अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो 4%, 3-4% से लेके 10% तक अगर हो तो हम उसको बात करते हैं कि ये ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। ये हमें एक सिग्नल देता है कि ओके देयर इज अ रेड सिग्नल, इकोनॉमी में प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं। 5-7% अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है उसको वहीं पे रोकने के लिए, बिकॉज वंस इन्फ्लेशन अगर आपके कंट्रोल के बाहर हो जाए फिर पूरी इकोनॉमी शैटर कर जाती है, फिर उसके साइड इफेक्ट्स, स्पिल ओवर इफेक्ट्स आगे पीछे एम्प्लॉयमेंट पे भी होगा, प्रोडक्शन पे भी होगा और पूरी इकोनॉमी शैटर कर जाएगी। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को एक सिग्नल मिलता है। आप सबको समझ आया व्हाट वॉकिंग ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन इज? किसी को प्रॉब्लम? उमंग नो, उमंग व्हाट नो? आपको समझ नहीं आया जहां आपको समझ आ गई? नाइन ओके, उमंग इट्स ओके, ओके। बाकी वालों को किसी को प्रॉब्लम? देखो रियाज इज सेइंग रिपीट, रियाज वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन का मतलब जब 4 से 10% के बीच में इन्फ्लेशन हो, जहां पर गवर्नमेंट को एक सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि प्राइस इज, yeah, that's not a problem, we do not have, listen guys, it's on the slide, it is written 3%। in economy there is no as such segregation, ठीक है, 4.5% भी हो जाए हम तब भी उसको, विकास इज सेइंग सर वेनेजुएला इज अ रीसेंट एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। नो विकास, दैट्स नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, आई विल गेट ऑन टू इट, वो अलग आगे मैं आऊंगा, ठीक है। अविनाश, इट्स अप टू 3 to 4% देन गुड, बट इट गोज ऑन 10% अबव द गवर्नमेंट कम्स इन रेस्क्यू। गवर्नमेंट 7% पे भी आ जाएगी अविनाश। गवर्नमेंट जब 5% से या 4% से ऊपर हो तो गवर्नमेंट उसके बीच में मेजर्स करना या अपने स्टेप्स लेना शुरू कर देती है। ये सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए भी कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रही है। अब सबको समझ आया? रियाज समझ आया आपको वॉकिंग ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? ओके ओके, मनीषा आपको, रितु आपको, अविनाश को आ गया, मोहन, दीक्षा, गुड। Can't we say it's reflation? Rishi, I told you reflation you have to do, and then we'll discuss. And I'm not going to discuss reflation today. Okay? Mohan call, got it. Tanveer, okay, sir. Okay, okay, okay. ठीक है, हम आगे चलेंगे। वॉकिंग हो गया, हम इसको ऐसे ज्यूम करेंगे, क्रीपिंग, बच्चा पहले क्रीप करता है फिर ट्रॉट करता है थोड़ा सा, अब रनिंग इन्फ्लेशन, अब बच्चे ने भागना है, ठीक है, और बच्चे का नाम क्या है? इन्फ्लेशन। अब वो भागेगी और अब वो हाई रेट पे भागेगी, 10 से 20% के बीच में।
जब 10% से ऊपर हो जाए तो उसका मतलब इन्फ्लेशन भाग रही है, बच्चा काफी तेज भाग रहा है, अब हमें उसे रोकना पड़ेगा। ठीक है गाइस, दैट इज रनिंग इन्फ्लेशन। विकास, गुड एग्जांपल, थैंक यू विकास। सो यू नो, आपको कभी भी ऐसा नहीं आएगा व्हाट रनिंग इन्फ्लेशन इज, रेस्ट एश्योर्ड, आपको ये समझने के लिए है। कभी भी किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि रनिंग इन्फ्लेशन क्या है, nobody will ask you, mine experience tells you, but you should have the concept कि कैसे हम कैटेगराइज करेंगे इन्फ्लेशन को। ओके, सो नेक्स्ट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है, जब 10-20% से ऊपर हमारी इन्फ्लेशन आ जाए, हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक गैलोपिंग इन्फ्लेशन और एक हाइपर इन्फ्लेशन। आपको इनका कंसेप्ट होना चाहिए। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब हमारी 100% इन्फ्लेशन हो गई, 200% इन्फ्लेशन हो गई, या मतलब 80% इन्फ्लेशन हो गई, ये सब हमारी गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं हमारे हमारे आज अगर 10% से प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, एक महीने बाद 50% से प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, अगले महीने। छोटा सा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपने पेन लिया आज 10 रुपए का, एक महीने बाद वही पेन आपका 20 रुपए का हो जाएगा, और एक महीने बाद वही पेन आपका 30 रुपीज या 50 रुपीज का हो जाएगा। आप लोग यार, ये तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, इकोनॉमी पूरी शटर होने पर आ जाती है। जब इससे भी ज्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में हो जाए, उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं गाइस। आई विल गिव यू एक स्लाइड। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइपर इन्फ्लेशन का, ठीक है। अब जैसे विकास ने, आई थिंक विकास ने शायद हमें एग्जांपल दी वेनेजुला की, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूंगा। प्राइसेस रोज बाय 41% 2013 में। 2013 में 41% से प्राइसेस राइज हुए, बट 2018 में 65,000% से प्राइसेस राइज हो गए। ये वेनेजुला में हुआ। क्यों हुआ इसमें हम जाएंगे नहीं, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। ओके, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वैसी थी, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स पे नहीं देखा। तब जब उनके पास पैसा था, उन्होंने इंपोर्ट करते गए वेनेजुला में, और उनकी इकोनॉमी को सस्टेनिंग नहीं बनाया, इसलिए वो इकोनॉमी शटर हो गई। बट आपको एक एग्जांपल दिया, जब 65,000 टाइम्स हम उनका प्राइस इंक्रीज हुआ, मतलब जो पेन 1 रुपए का था, वो पेन 4 साल या 5 साल में 65,000 का हो गया। Now you understand what hyperinflation is? Are they bankrupt? मोहन, इकोनॉमी बैंकरप्ट नहीं होती, एक एंटिटी बैंकरप्ट होती है, एक कंट्री कभी बैंकरप्ट नहीं होती। ठीक है, दे आर शैटर्ड। उनको फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक रेस्क्यू के लिए आता है, क्योंकि वहां पर लोग हैं, कंट्री तो चलानी है। So bankruptcy is not a concept associated with a country या economy. That's associated along with a company. हम एक कंपनी को bankruptcy कह सकते हैं। कैसे इकोनॉमी क्या bankruptcy फाइल कर सकती है? वो नहीं कर सकती, किसके पास रोएगी जाके? What will happen to Pakistan? God knows. Salim, अब how 65,000%? Salim, how 65,000%? मतलब वहां पे देखो what exactly happened with Venezuela. वहां पे Venezuela is, do you people know it is a part of OPEC? And how many of you know what OPEC is? Venezuela is basically a oil producing nation. एक oil producing nation है Venezuela। अब वहां क्या हुआ कि जब ऑयल प्राइसेस हाई थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि सब कुछ इंपोर्ट करना शुरू किया। मतलब उन्होंने जो ब्रेड भी लेना था वो भी इंपोर्ट करते थे, जो पेन भी लेना था वो भी इंपोर्ट करते थे, हर चीज इंपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा था, वो ऑयल एक्सपोर्ट करते थे। बट उनका एक्सपोर्ट तो अच्छा चल रहा था, इंपोर्ट बहुत ज्यादा था। उस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया अपनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने में। आउट ऑफ 165,000, आई मीन, Salim, I'm not able to get you what I'm asking, what you are asking. Okay, so I was saying, तब उन्होंने अपनी इकोनॉमी वो नहीं की, बिल्ड नहीं की, जब उनके पास पैसा आ रहा था। उन लोगों ने क्या किया, वो सारा पैसा मतलब वेस्ट कर दिया इंपोर्ट करने में। ठीक है, अपनी एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं की, मतलब अगर वो पेन बाहर से किसी यूएसए से इंपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने उसको यूटिलाइज नहीं किया, यहाँ पे कोई पेन की फैक्ट्री नहीं बनाई। अगर वो लोग बाहर से कपड़े ले रहे थे, यहाँ टेक्सटाइल मिल नहीं बनाई। ठीक है, बिकॉज परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100।
I'm not getting you people, what you're exactly asking me. Salim, I'm not able to get you what you're asking me. Percentage out of, when Salim, the only concept that I'm trying to tell you is कि prices इतने ज़्यादा बढ़ गए कि 65,000 तक बढ़ गए, 65,000 in % बढ़ गए. Okay, so that is a concept हमें यहाँ पर जो समझना है basically. ठीक है? How Venezuela got into that situation वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है. और hyperinflation थी between 2004 and 2009. ठीक है, इन्फ्लेशन रेट 91 percentage is out of 100. Yes. We cannot say 65,000. No. Mohammed Salim, if you are asking me कि कैसे 65,000 होता है अगर तो वो आउट ऑफ 100 है, नो, ऐसा नहीं है. ये 10,000 1,00,000% भी हो सकता है. आउट ऑफ 100 डज नॉट मीन कि उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता. आई विल गिव यू एग्जांपल, दो वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक. अगर आज का रेट 2 रुपए है और कल 4 रुपए होता है तो कितने % प्राइस इंक्रीज हुआ? टेल मी. अगर आज 2 रुपए है तो कल 4 रुपए प्राइस हो गया, कितने % प्राइस इंक्रीज हुआ? Salim will answer and all of you will answer. Tell me. Manisha 50? No, Manisha, you are wrong. Anayat is saying 200. No, guys, how 200? Umang is saying 2. No. Vikas saying 100. Yes, exactly 100% ना. Price double हुए हैं. 100% जितना था 100% इंक्रीज हो गया. Got it? अब 2 से लेके अगर प्राइस 6% इंक्रीज हो जाता है. Yes, Manisha, double means from 2 to it is getting 4. The increase is in 100%. अगर 2 से 3 होता तो 50% होता. Got it? But अगर 2 से 6 हो रहा है तो कितने % इंक्रीज हुआ? सलीम, थैंक. Got it, सलीम. 2 से 6 होगा 200% इंक्रीज होगा ना. Yes, Inayat. Got it. हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, आप 10,000 लगाओ, लोग 50,000 कमाते हैं. ठीक है, that is 500 times, guys. So you cannot say कि 100% से ऊपर नहीं हो सकता. राकेश झुंझुनवाला has made money 65,000, I don't know how many % of times. At one point of time उसके पास I think 2 लाख रुपए पता नहीं 2 करोड़ रुपए थे something. आज उसके पास 6,500 crore rupees है, lakh crore rupees from Titan Gold shares. Exactly. So आपको समझ आ गया? We were digressing from the topic. Let's come back now. जिम्बाब्वे में भी एक सिचुएशन आई. जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब वॉर हो गई, वहां पे प्रोडक्शन होना बंद हो गई, तो तब भी वो प्रॉब्लम आई. एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल था वेनेजुएला में, हम भूल गए. लाइक स्ट्राइक रेट ऑफ बैट्समैन. एग्जैक्टली रियाज, एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जांपल. एक बॉल पे 6 रन मारो तो आपका 600 का स्ट्राइक रेट होता है. रियाज, वेरी गुड एग्जांपल, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड. नो, कम बैक टू द टॉपिक. हाइपर इन्फ्लेशन वेनेजुएला में जो थी, तब क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई, वहां पर पैसों का कोई वैल्यू ही नहीं रही. तब लोग क्या करने लगे, अंडों को बेचने लगे, अंडों को एक्सचेंज करने लगे. अब आप मुझे बताओ, जब हम करेंसी को यूज ना करें, एक गुड को दूसरे गुड के बदले बदलें, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? When there is an exchange, Vikas is saying barter. Okay, बाकी सब भी आंसर करें. I want all of you to answer this. Barter system. Mukul is saying barter system. Manisha is saying barter system. Avinash is saying no problem. Mohan is saying barter system. Or Ritu, Diksha, good, barter system. Others, all of you answer. Ritu, barter, okay. जिनको नहीं पता बार्टर सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जब हम पैसों को बीच में से हटा दें. फॉर एग्जाम्पल, वैभव हैज गिवन मी दिस कॉफी. आई विल नॉट गिव मनी टू हिम, मैं इनको पैसा नहीं दूंगा, बट ही विल आस्क कि मैंने आपको कॉफी दिया, आप मुझे पानी की बोतल दे दो. सो दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. एग्जैक्टली, ये बार्टर सिस्टम है. यू नेवर नो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, दैट इज वेरी इजी. अब आपको समझ आ गया? Everybody understood? There is an exchange of goods for goods. That could be for services also. अगर मैं नाई के पास जाता हूं,
वो मुझे हेयर कट देता है, उसकी सर्विस देता है, मैं शायद उसके बदले उसको गार्डनिंग की सर्विस दे दूं। ठीक है, गॉट इट, ओके, गुड गाइस, ओके, सो वी मूव ऑन। जिम्बाब्वे का हमने एग्जांपल देख लिया, हमने ओके जर्मनी का एग्जांपल देख लिया। अब हम देखेंगे सीपीआई कैसे हम करती है। सीपीआई की बात करते, ठीक है, ओके सीपीआई की बात कर रहे थे हम। तो सीपीआई हमें पहली बात है, इस इंडेक्स से हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी में कितना है। गवर्नमेंट को सिग्नल जाता है कि ओके यार 4% इन्फ्लेशन है, इट्स गुड फॉर इकोनॉमी। 4 से लेके इफ इट इज लाइक अप टू 10%, लेट्स डू समथिंग, वी नीड टू हैव चेक, हमें कुछ करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के बारे में। उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट देन कम्स विद स्ट्रिंजेंट मेजर्स, कुछ ज्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स के साथ गवर्नमेंट आएगी। एक चीज ये अंडरस्टैंडिंग द रियल वैल्यू ऑफ द वेजेस, ये अब इससे कैसे पता चलेगा हमें, कैसे वेजेस के बारे में पता चलता है। तो गाइस जैसे इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, 10% है, 8% है या 2% है, अगर इकोनॉमी में सिर्फ इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा ओके इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी हो रही है, दैट मीन्स पीपल आर गेटिंग गुड वेजेस। ओके, इफ देयर इज अ स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं पा रही है, सिर्फ इन्फ्लेशन हो रही है। दैट मीन्स जो वेजेस है, जो सैलरी लोगों को मिल रही है, वो पूरी नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्टली जो होनी चाहिए। दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड द वेजेस, टू कीप अ टैप अपॉन द इन्फ्लेशन, ये सब हमें इन्फ्लेशन से या सीपीआई से पता चलता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। हम इस लेक्चर को थोड़ा सा वो करेंगे, स्टार्ट हमने किया इन्फ्लेशन से, टाइप्स की बात की, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब डिस्कस किया। फिर डिस्कस किया कौन मेजर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करता है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई से। उसके बाद हमने देखा कि बेस्ड अपॉन द रेट कौन कौन सी इन्फ्लेशन है। हमने किया ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, creeping inflation, trotting inflation. Manmeet is here, okay. हमें trotting inflation, walking inflation, फिर running inflation, फिर हमने बात की galloping inflation के बारे में, फिर हमने बात की hyper inflation के बारे में। ये सब हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में किसकी वजह से, बेस्ड अपॉन द कॉज, कि किसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3-4 कैटेगरीज में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये हमारे 2-3 कंसेप्ट हैं। ओके गाइस, गाइस मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, आपको समझ आ रहा है साथ साथ में? But is he? Yeah. Rishi, okay, रियाज, ओके ओके। ऋषि आपको समझ आया? आगे बढ़े हम। What about मोहन, लेट मी नो। ऋषि, इनायत, ओके, आप सबको समझ आ रहा है। रितु, सलीम, ओके गुड। ऋषि, यस सर, गो हेड, ओके गाइस, आप सबको समझ आ रहा है, वंडरफुल। ओके मोहन, गुड। सो बेस्ड अपॉन द कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई से। आई टेल यू, एक इकोनॉमी में कंसेप्ट होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो रियल में नहीं होता, बट हम अज्यूम करते हैं इकोनॉमी में जितनी भी लेबर है। मैं इसको और छोटा सा मतलब और सिंप्लीफाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम मोहन की एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, हमने पहले मोहन की बात ली, अब ऋषि के एग्जाम्पल लेंगे। ऋषि के घर पे देयर आर 5 पीपल हु कैन वर्क, ठीक है। सो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है उनकी लेबर फोर्स जो काम कर सकती है, जो उनको पैसे दे सकती है। सो जब इन 5 को काम मिल जाएगा, हम सोचेंगे कि क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा तो उनके घर पे आदमी ही नहीं है, वो कैसे काम करेंगे। दैट मीन्स द मैक्सिमम पीपल जो हम एम्प्लॉय कर सकते हैं ऋषि के घर से वो 5 ही। गॉट इट?
ये इकोनॉमी के साथ होगा। इकोनॉमी में हम अज्यूम करते हैं जितने ज्यादा लोगों को हम जितने लोग नौकरी कर सकते हैं वो है 5 ही, मतलब ऋषि का घर। ओके, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। जब भी मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करूं आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब सब लोगों को नौकरी मिल जाए वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? वो इन्फ्लेशन जो डिमांड की वजह से, जहां पे डिमांड एक्सीड कर जाए सप्लाई से। एग्जाम्पल, ऋषि के घर में 5 बंदे हैं, 5 को नौकरी मिल गई, ठीक है। अब ये 5 जाते हैं, 5 को नौकरी मिलने का मतलब 5 को सैलरी मिल रही है, सैलरी मिलने का मतलब इनकी इनकम आ रही है, इनकम से ये कुछ खरीदेंगे, ठीक है। अब ये जाते हैं मार्केट में, एक ही देयर इज वन पर्सन जो सामान बेचता है। लेट्स अज्यूम दीक्षा इज अ वन हु इज द होलसेलर, और सिर्फ 1 पर्सन इज देयर जो सामान बेचते हैं। अब ये 5 जाते हैं, ये 5 वहां पे सामान खरीदते हैं और इनकी इनकम बढ़ गई है, सप्लाई आ नहीं रही है, ये इनके पास पैसे हैं, ये जाके बोलते हैं मुझे 1 केजी एप्पल दो। दीक्षा के पास सिर्फ 4 केजी है, बट ऋषि के घर से 5 बंदे जाते हैं, सबके पास पैसे हैं, दे विल स्टार्ट फाइटिंग बिकॉज दे ऑल ऑफ देम दे हैव मनी, दे वांट कमोडिटीज, इन सबको एप्पल चाहिए, सबके पास पैसे हैं। दीक्षा कहते हैं कि ओके 10 रुपीज पर केजी एप्पल है। अब ऋषि के घर से एक बोलता है ओके आई हैव 12 रुपीज, आप मुझे 12 रुपीज के हिसाब से मुझे दीजिए, इनको मत दीजिए क्योंकि कमोडिटी कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं। दूसरा बोलता है नो गिव मी ऑन 14, थर्ड सेज गिव मी ऑन 16, फोर्थ सेज गिव मी ऑन 17 एंड फिफ्थ सेज ओके आई विल गिव यू 20, गिव मी ऑन 20। आपको समझ आया कैसे रेट इंक्रीज हो गया 10 रुपए का? क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड एक्सीड हो गई सप्लाई से, सप्लाई बढ़ आ नहीं रही है पीछे से, बट डिमांड बढ़ रही है। गाइस आपको समझ आया व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? नाउ टेल मी, आपको समझ आया? ऑल ऑफ यू? चलिए फाइन, ओके। यस, ऑल ऑफ यू, राइट, ऑल ऑफ यू। अनिशा ओके, रितु यस, उमंग हाँ, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ठीक है, गॉट इट, ओके। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? इट इज बेसिकली कि जब जो इन्फ्लेशन होती है वो डिमांड साइड से नहीं, जस्ट लाइक द परचेज ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, won't call not exactly like purchase of vegetable from the market. It is basically what happens when there is an excessive demand and supply is not coming in the market. Okay, that is got it. So cost push inflation का मतलब क्या होता है? ये तब होती है जब गुड्स और सर्विसेज की हमारी कॉस्ट बढ़ जाए। कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ऐसे भी बढ़ सकती है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, हम विकास की एग्जांपल लेंगे। विकास ओनर है एक फार्म हाउस के, और उस फार्म में वो उगाते हैं सैफ्रॉन। जब एप्पल, हम एप्पल की एग्जांपल लें, हम एप्पल ही लेंगे, ठीक है। विकास ग्रो करते हैं एप्पल को। होता क्या है कि उन एप्पल्स में विकास जो पेस्टिसाइड, Mohan is writing just like the purchase of vegetable from the market sometimes supply. Yes, Mohan, I got you what you wanted. Exactly. Good. Sorry, guys. Now, we were discussing cost, push inflation. इसमें हम विकास की एग्जांपल ले रहे थे। विकास ने एप्पल फार्म हाउस है विकास का, और विकास ही लोन सप्लायर है, एक लोते सप्लायर है मार्केट में जो एप्पल्स को बेचते हैं। अब क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स विकास उसके ऊपर वो करते हैं, यूज करते हैं, या जो और इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, उनका प्राइस बढ़ जाता है। अब विकास क्या करेगा? विकास भी अपने एप्पल्स का प्राइस बढ़ा देगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन तो उतना ही रखना है। सो व्हाट he will increase the price of the apples. अब एप्पल्स का प्राइस बढ़ाएगा तो क्या होगा? ये जो इंक्रीज इन प्राइस हुआ है, ये डिमांड की वजह से नहीं हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हुआ। क्योंकि अब क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स का प्राइस बढ़ा। एक चीज है रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कोई भी कमोडिटी, लेट्स अज्यूम कि हम लैपटॉप्स की बात कर लेते हैं कि वी हैव अलोंग विद अस रितु की एग्जांपल लेते हैं। रितु इज द ओनली सप्लायर ऑफ लैपटॉप्स इन द मार्केट, एंड सडनली क्या हो गया कि जिन चिप्स से ये लैपटॉप बनते हैं उनका प्राइस बढ़ गया। अब पहले ऋतु 40,000 रुपये एप्पल बेचते थे, ये लैपटॉप बेचते थे, अब क्या हो जाएगा? वही 45,000 का हो जाएगा क्योंकि पीछे से महंगा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब आप बोलोगे सर नहीं, दिस टाइम व्हाट हैज हैपेंड,
अर्लियर लैपटॉप का प्राइस 40,000 था, अब 45 हो गया है। इन्फ्लेशन तो हुई है, बट दिस इज नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिमांड. This cannot be, demand pull inflation. What it is cost push inflation. Okay, the rise in the price of goods and services because of the increase in the cost, and increase in the cost could be because of sorry, increase in the cost could be because of increase in the raw materials. It could be due to the government policy also. Diksha has raised hand. Diksha, कोई question है, बताएं आप. दीक्षा, आपका क्वेश्चन है कोई, और shall we move on? Diksha repeat sir. Okay Diksha, the difference between demand pull inflation और cost push inflation के बीच में क्या है? हमने डिमांड के बारे में तो देखा कि जब इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली हम इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी, जो कि बड़ी नॉर्मल सी, इट इज, यू कैन सी एवरीवेयर. बट अब हम देखें, हमने एग्जांपल लिया ऋतु का, कि ऋतु लैपटॉप्स की सप्लायर है मार्केट में, इकलौते सप्लायर है. होता क्या है कि चाइना से मार्केट लैपटॉप्स आ रहे हैं, चाहे यूएस से आ रहे हैं, वहां पे लेबर ने स्ट्राइक कर दी. लेबर बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, हमें वेजेस ज्यादा चाहिए, और वेजेस ज्यादा चाहिए, तो जो वहां का जो प्रोड्यूसर है उसने उनकी वेजेस बढ़ा दी. उनकी सैलरी बढ़ी, तो वो सैलरी कहां से देगा, वो अपने घर से तो नहीं देगा, वो लैपटॉप का प्राइस बढ़ा देगा. अब ऋतु को पहले आ रहा था 39,000 का, अब ऋतु को आएगा वो 40,000 का, और ऋतु जो 45,000 का मार्केट में बेच रही थी, ऋतु उसको ही उसका प्राइस बढ़ा देगी थोड़ा सा और. अब जो मार्केट में है वो देखेगा कि प्राइस इंक्रीज तो हो गया, और ये इन्फ्लेशन है. एग्जैक्टली इट इज इन्फ्लेशन, बट किसकी वजह से है? डिमांड की वजह से नहीं, डिमांड उतनी ही है मार्केट में, बट ये इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसको बोल देंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. आपको समझ आया दीक्षा? आप सबको समझ आया? यस सर, गुड दीक्षा. ऋतु, विकास, मोहन, आप सबको समझ आया? मनीषा ओके, ऋषि ओके, रियाज ओके, विकास ओके, सलीम ओके, गुड, ऑल ऑफ आपको समझ आ गया. ठीक है. दूसरा है स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स. इसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं. स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होती है? जो स्ट्रक्चर की वजह से हो, ना तो डिमांड की वजह से, ना तो कॉस्ट की वजह से. Tanveer is saying yes sir, here internet is working good here sir. Good Tanveer, very good. Not working, Tanveer, I'm sorry then. Good Tanveer, what you are saying? Okay. So we're talking about structural inflation. Okay. Now Tanveer, this is what? Demand inflation or cost inflation? What? Yes sir, no sir, good sir. Structural bottlenecks, guys, we were discussing, coming back to the point. Structural inflation is basically something which is, because of structure prevailing in the economy. मतलब जो ना कि कॉस्ट की वजह से है, ना तो डिमांड की वजह से है, जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चर है. नाउ यू कैन आस्क मी व्हाट स्ट्रक्चर इज. स्ट्रक्चर इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैं फिर से एग्जांपल लूंगा, तनवीर की एग्जांपल लूंगा. तनवीर एप्पल सेल करता है, ठीक है, ये होलसेल मार्केट में देता है 20 रुपए हिसाब से, लेकिन आपके एप्पल आते हैं 60 रुपीज पर केजी. दैट इज इन्फ्लेशन. तो ये इन्फ्लेशन किसकी वजह से है? क्या ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. तनवीर 10 रुपीज या 20 रुपीज केजी एप्पल बेच रहा है होलसेल को, लेकिन आपके पास रिटेल में जो एप्पल आ रहे हैं वो 60 रुपीज पर केजी आ रहे हैं. क्या ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है या कॉस्ट पुश? All of you tell me. All of you tell me. Mohan is writing demand, Avinash demand, Mohammed Salim cost, Umang cost, Zakir. All of you answer, all of you.
Ritu demand. Manisha, what is your answer? Diksha, okay, cost. Tanveer is writing cost push, I think, sir. Okay, that's great that you think, Tanveer. Okay, Manmeet, Riaz. Okay, 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 okay. Guys, it is neither demand nor cost push. ना तो ये डिमांड है ना कॉस्ट पुश है. क्यों? क्योंकि डिमांड की वजह से भी वो नहीं इंक्रीज हुआ और कॉस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तनवीर तो 20 का ही बेच रहा है ना. तनवीर ने थोड़ी प्राइस इंक्रीज किया, ना कि कोई ज्यादा खरीदने आया कि उसकी डिमांड की वजह से हुई. ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है. स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्यों है ये आई विल टेल यू. आपने तनवीर ने 20 रुपीज का होलसेल वाले को दिया, ठीक है. 20 रुपीज का जब दिया तो हुआ क्या कि अगर उसने 10 टन एप्पल दिए, सब तो मार्केट में पहुंचे नहीं, बिकॉज हमारे पास स्टोरेज हाउस इतने नहीं है. एप्पल क्या है? एप्पल एक पेरिशेबल कमोडिटी है. पेरिशेबल कमोडिटी क्या होती है? जो सड़ती है, गलती है. अब इसने अगर 10 टन एप्पल्स बेचे, क्लिक ऑन, अगर इसने 10 टन एप्पल बेचे तो उससे क्या हो गया? आपके पास कितने पहुंचे? आपके पास अल्टीमेटली जो सड़के ट्रांसपोर्टेशन उस सब से अल्टीमेटली जो आपके पास पहुंचे वो सिर्फ और सिर्फ 5 टन पहुंचे. अब जिस होलसेल वाले ने इससे 20 रुपए प्राइस से खरीदा था वो भी तो अपना कंपनसेट करेगा ना. Got it, guys? What structural inflation is? Which is due to the structure. क्योंकि हमारे पास स्टोरेज हाउसेस नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है. Okay. Due to natural cause? No, Mohan, it is not due to natural cause. It is basically, Ritu, repeat, sir. Okay, Ritu, I'll repeat. देखो, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होती है? जो इन्फ्लेशन की वजह से. इन्फ्लेशन की वजह से का मतलब क्या हो गया? विच इज नीदर डिमांड नॉर कॉस्ट. इन जो स्ट्रक्चर प्रिवेलिंग, जो हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यूएस में अगर तनवीर ने एप्पल बेचे होते तो वहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, वहां के रोड्स इतने अच्छे हैं, वहां पे स्टोरेज हाउसेस इतने अच्छे हैं, कोल्ड स्टोरेज है, या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर. एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर. वहां पे पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं कि तनवीर से जब कोई एप्पल लेता या कोई होलसेलर लेता, वो सबसे पहले क्या करता? कोल्ड स्टोरेज में डालता. कोल्ड स्टोरेज में डालने से क्या होता कि वो जब भी बेचता उसकी एप्पल सड़ते नहीं, गलते नहीं, वेस्ट नहीं होते. ठीक है. यहाँ पे टैक्सेस इतने हैं, इंट्रा स्टेट में इतने टैक्स लग गए कि जो 20 रुपए का एप्पल था वो 60 रुपए पहुंच गया स्ट्रक्चर की वजह से. अब जीएसटी आ गया है तो एक टैक्स है, पहले कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे साथ. आपको समझ आया? स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट की, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी की वजह से जो इन्फ्लेशन हो उसे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं. राइट, समझ आया आप सबको? आप किसी को प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, नहीं. यस मनमीत, नो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. ग्रेट, गुड गुड. Supply falls drastically and demand remains same level, or we say mismanagement. Rishi, it's not mismanagement. जब मैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी कंट्री का स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी का, टू बी मोर प्रिसाइज, जो आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, क्या आपकी इकोनॉमी में ऐसा स्ट्रक्चर है कि जहां पे कमोडिटी एक फार्मर से लेके सेलर तक, प्रोड्यूसर जो हम फाइनल कंज्यूमर है वहां तक सीधे पहुंच जाती है विदाउट एनी लॉस? हम देखते हैं फार्मर्स को, अगर मार्केट में देखें तो एप्पल्स का रेट इतना हाई है, लेकिन जो एप्पल ग्रोअर हैं उनकी कंडीशन बड़ी वो है, मतलब फार्मर इज नॉट सो वेल ऑफ. क्यों? बिकॉज उसको अल्टीमेटली फायदा या बेनिफिट नहीं मिलता जो मार्केट में प्राइस है. देयर इज अ डिफरेंस. मार्केट में कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम है, वो 60 रुपए से खरीद रहा है, वो भी ज्यादा पैसे अपने दे रहा है, और अल्टीमेटली जो सेलर है वो भी बेचारा. Yes, Manisha, due to structure of the economy, government, tax, infrastructure, due to lack of proper infrastructure. Exactly. तो आपको समझ आ गया आप सबको? अब किसी को प्रॉब्लम? ओके सर, यस सर, विकास, ओके.
सबको समझ आ गया? मुकुल आपको समझ आया? रितु, दीक्षा, विकास, सलीम, अनायत, यस, ओके, आप सबको समझ आया, ठीक है। सो अब हमने बात की टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रेट, हमने 4-5 डिस्कस किए। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कौन सी इन्फ्लेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज के ऊपर डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ये बेसिकली जब इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल I'll take example of this time मुकुल। ओके, मुकुल के घर पे, मुकुल इज एन इकोनॉमी, मुकुल के घर पे हम एज्यूम करते हैं कि इनकम 0 इनकम है और मैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, मैं मुकुल को 10 रुपए देता हूं टू गो एंड बाय एप्पल। मुकुल बाइज 1 kg एप्पल एंड आई एम द आरबीआई, आई थिंक ओके मुकुल यू नीड मोर, मैं ऐसे ही तुम्हें 50 रुपए दे देता हूँ। अब मुकुल जाती है और उसी 10 जो एप्पल है, एप्पल को 15 रुपए में खरीद के आती है, और जहाँ 20 रुपए में खरीद के आती है, क्योंकि सप्लाई कम है, मुकुल चाहती है मैंने खरीदना है, वो 15 रुपए या 20 रुपए में खरीदती, ठीक है। बाकी वाले भी खरीदने आते हैं, उनके पास 10 रुपए है, मुकुल के पास ज्यादा पैसे हैं, मुकुल 15 रुपए में खरीदती, ठीक है। अब ये क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से है। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से कैसे, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी हमने इकोनॉमी में ज्यादा कर दी, जितनी लोगों को चाहिए उससे ज्यादा है। लोगों के पास पैसा ज्यादा है लेकिन गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में कम है। एप्पल्स कम है लेकिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। गॉट इट गाइस, इट इज सॉर्ट ऑफ डिमांड ओनली, हम डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। बट ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। आगे जाके हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी डिटेल में करेंगे, वो एक सेपरेट वो है। लेकिन अभी तक आपको ये समझ आ गया आज का लेक्चर, डिमांड पुल, इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चरल, मॉनेटरी पॉलिसी। दो मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये 3 ऊपर वाले समझ आ गए। सो स्टॉक पाइलिंग डिमांड पूरे में आएगा। मनमीत, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे थे। सलीम ओके, गुड। रियाज ओके, ओके, यस, ओके। दीक्षा ओके, तनवीर ग्रेट लेक्चर, थैंक यू तनवीर। यस आई आस्क्ड हिम, ओके 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 ओके। मुकुल आपको समझ आया? सर जो स्टॉक हम स्टोर करते हैं वो किस में आएगा? ओके ओके। अब मनमीत मैं आपको समझाता हूँ। मनमीत, इफ यू आर ट्राइंग टू से कि अगर हम स्टॉक ऑफ गुड्स ले लेते हैं और वो किस टाइप का इन्फ्लेशन होगा, आई विल टेल यू। फॉर एग्जांपल एक वॉर होती है, ठीक है, ये बेसिकली आएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, ठीक है। कॉस्ट पुश को हम आगे फिर से पढ़ेंगे मनमीत, उससे आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक वॉर हो जाती है, ठीक है। अब वॉर हो जाती है तो वॉर के केस में क्या होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जैक्टली व्हाट, एक रियल टाइम एग्जांपल। US thought of attacking Iran, ठीक है। Mohammed Salimi, sun after rain. Mohammed, how can we sun can come right now? Okay, 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 okay. Okay, I was giving example. US assume करता है कि मैंने ईरान पे अटैक करना है, ठीक है। अब हम, बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम इंपोर्ट है वो ऑयल का इंपोर्ट है, और ईरान इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया। तो अब सडनली क्या होगा, जब यूएस अटैक करता है ईरान पे, तो हमारी सप्लाई चेन क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। जब हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे ऑयल से रिलेटेड कितने कमोडिटीज हैं। डू यू नो ऑयल इज नॉट ओनली यूज्ड इन दिस रनिंग व्हीकल्स, ऑयल और बड़े कमोडिटीज में यूज होता है, और बड़ी ज्यादा कमोडिटीज में, ठीक है। तो अब उन सब कमोडिटीज में जहां पे ऑयल यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल द सेम ऑयल इज यूज्ड टू रन इंडस्ट्रीज आल्सो, द सेम ऑयल इज यूज्ड टू रन डिफरेंट कमोडिटीज आल्सो। तो उन सब वो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी
जब वो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी तो मार्केट में वो कमोडिटीज कम आएंगी। जब वो मार्केट में कमोडिटीज कम आएंगी तो अब जो सप्लायर है जिसके पास कम है वो कमोडिटी है, तो वो क्या करेगा, उनके प्राइसेस बढ़ा देगा। जब उनके प्राइसेस बढ़ा देगा तो ये क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या हो गया, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आया। एक छोटी एग्जांपल और दूं, इफ आई एम नॉट एबल टू टेल यू मनमीत, जैसे कोविड का केस आया, सडनली कोविड-19 आया, मनमीत आई विल गिव यू एग्जांपल, आई थिंक आई हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर। कोविड-19 आया, कोविड-19 में सडनली मास्क की डिमांड बढ़ गई। जब मास्क की डिमांड बढ़ी तो उससे क्या हो गया कि जिन लोगों के पास मास्क थे उन्होंने स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया और हाई रेट पे बेचना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज नॉट डिमांड, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे ऐसे केसेस में इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, बिकॉज पीछे से सप्लाई उतनी मैच नहीं कर पाई हमारी। नहीं मनमीत, it will not come into cost. Whenever there is a pandemic, whenever there is a war, it will come in under the cost push inflation. Got it? Okay guys, let's move on further. If Suvigya can give me control, then only I can come. This is demand pull inflation. ये जब आप इसको पढ़ेंगे, you will be provided this PDF, आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप डिटेल में पढ़िएगा। आई एम श्योर मैंने आपको पूरा समझाया है एंड आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है, we'll discuss in the next lecture, आप तब मुझे बताइएगा सर ये प्रॉब्लम थी, ठीक है मनमीत, आप बताइएगा क्या इशू है क्या नहीं है। यहाँ पर डिटेल में दिया है। ओके, ये डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप एक कंसेप्ट है। इन्फ्लेशनरी गैप, इसमें क्या होता है, बेसिकली जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है सप्लाई से, when from Vivek to everyone, slides over here and PDF is different. Vivek, I'm not able to get what you are saying. क्या कह रहे हैं? No. Slides over here and PDF is different. Okay. Today's lecture is not in there in the PDF that is given to you. No problem. That will be provided today only. Okay, today's lecture. Vivek, got it? Today or tomorrow morning, no problem. The PDF that you have got earlier, that does not carry this particular information. I know very well to point, Vivek. I'm going to provide because this has been updated now. Today I was, that was a general lecture that I took about growth and development, but I didn't discuss this inflation then. And I wanted to discuss inflation today, so I took examples and I was like searching internet and all those things. So this is updated. I hope you will like when you will read it. So inflationary gap we'll discuss today. Inflationary gap क्या होता है guys? Inflationary gap क्या होता है? ये एक demand pull inflation का सिनेरियो होता है जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, उसकी वजह से ना एक इकोनॉमी में गैप आ जाता है डिमांड के बीच में और सप्लाई के बीच में। उस गैप को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि ये गैप किसकी वजह से क्रिएट हुआ? इन्फ्लेशन की वजह से। Okay, Tanveer is saying, sir, in PDF each and every print should be given like example which you are using, and it's very easy language which is understandable easily. Tanveer, exactly. But Tanveer, how can I give you the PDF when I'm discussing your example or Mukul's example, Vivek's example? Okay, so what we can do is that you study this. Yeah, we are also providing recorded lectures to you in your account which you have along with EduFam. You can replay those lectures and then keep along with this PDF. Whatever I am saying, you will get it. आप सबको समझ आ गया? You can use your recorded lectures also. जो हम बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपको सबको मिल जाएंगे recorded lectures, so that आप जब भी इनको सुनना चाहें या देखना चाहें, वीडियो होगी आप देख सकते हैं। Every example that I am discussing now, will be there. You will be there. Okay, so coming back to the inflationary gap. Great, Avinash, thank you. Coming back to the inflationary gap, आपको inflationary gap समझ आ गया? ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे there is an increase in demand, okay, और एग्रीगेट सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं कर पाती। सो अगर सप्लाई यहाँ पर है और डिमांड यहाँ पर है, उसके बीच में जो गैप है उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये हमारी कॉस्ट पुश डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक सिनेरियो होता है, इसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन होती है।
Okay guys, इसको आप बाकी पढ़ेंगे. In such a situation, the excessive pressure on the demand will fuel the inflation in the economy. I think I don't need to translate. Cost push inflation मैंने आपको समझाया, ठीक है. It is because due to the increase in the cost of producing goods and services. अब कैसे, जैसे मनमीत, I was telling you now, focus here. The cost can be increased mainly due to like increase in the wages. For example, कि मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मनमीत वहां के ओनर है, और मैं बोलता हूँ मनमीत मेरी सैलरी बढ़ाए. मनमीत मेरी सैलरी बढ़ाने को मान जाता है, ही इज वेरी जेनरस. ओके, तो ये जब मान जाते हैं तो ये उस सैलरी को अपने जो प्राइस, जो गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें तो इफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मेरा फायदा हो, और ये चाहते हैं मेरा फायदा हो, बट ये नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो. तो अपना प्रॉफिट मार्जिन तो उतना ही रखेंगे, और अपना प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रखने के लिए उनको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. तो ये प्राइस बढ़ाएंगे. उस टाइप की इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी हमारी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इट इज बिकॉज हमारा इंक्रीज इन द वेजेस. मनमीत इज सेइंग डिमांड पुश लीड्स टू कॉस्ट पुश. मनमीत, इट कैन, कभी कभार जब हम हाइपर इन्फ्लेशन होती है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. इकोनॉमी में ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्टर में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो और एक सेक्टर में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो, ठीक है, और एक सेक्टर में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो. एग्जांपल आई कैन गिव यू स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का. मैंने सीधे सीधे बताया आपको कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो सकती है. हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्या हो सकता है, हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है, क्योंकि अभी हमारा चाइना के साथ वी आर नॉट अंडरगोइंग गुड रिलेशन. तो वहां से जो गुड्स और कमोडिटीज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो एक सेक्टर में कॉस्ट पुश भी हो गया, ठीक है. एक सेक्टर में डिमांड पुल कैसे हो सकती है, ठीक है, किसी कमोडिटी की डिमांड सडनली इंक्रीज हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, तो सडनली इलेक्ट्रिक कार्स की या बैटरीज की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सो ओवरऑल इन्फ्लेशन को आप क्या बोलोगे, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. In one sector we are having structural inflation, on the other we have another, and third we are having the other type of the inflation. मनमीत, आपको समझ आया? I hope I have been able to make you clear. आप सबको समझ आया? अविनाश, ओके, उमंग, दीक्षा, रितु, सलीम, तनवीर, मोहन, ऋषि, ओके ओके, सबको समझ आया. गुड गुड. अब एक कॉस्ट तो हमने कर लिया. इट कुड बी, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जैसे द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कुड बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज. तनवीर, थैंक यू. द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कुड बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेजेस. यस, इट विल बी इंक्रीज इन द वेजेस. सेकंड, इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल. ये मैंने आपको समझाया कैसे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ने से हमारी इन्फ्लेशन होती है, ठीक है. तनवीर एप्पल ग्रोअर है, तनवीर को जो एप्पल्स के जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो भी ऑर्गेनिक की अगर करते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाती है, तो वो जो रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हुआ उसकी वजह से जो उन्होंने प्राइस इंक्रीज किया वो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आ जाएगा, ये रॉ मटेरियल की वजह से. एक है इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स. लेट्स अज्यूम अनायत, विल टेक अनायत दिस टाइम. अनायत इज ओनर ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है, और अनायत ये सोचते हैं कि हमें अपना जो गुड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना है. प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए ये क्या करेंगे, उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करेंगे. अब प्राइस इंक्रीज करने के लिए ये क्या करेंगे, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो मार्केट में गुड आएगा वो एक इन्फ्लेशन के फॉर्म में आएगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा इंक्रीज हुआ. सो दिस कुड बी आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ये आपको एमसीक्यू आ सकता है डायरेक्ट, जैसे मैंने पहले बात की कि व्हाट कुड लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म्स, यस. इंक्रीज इन वेजेस, यस. इंक्रीज इन रॉ मटेरियल्स, डेफिनेटली. गाइस, आपको समझ आया? इज इट क्लियर नाउ? Am I clear, guys? Am I audible even? Okay, Tanveer. Yes, sir. Yes, yes. All of you are right. Because this way I'll be able to understand कि आप सबको समझ आया. Okay, great.
Good guys, good. So this is wage push inflation. I told you कैसे wages बढ़ाने से हमारी inflation होती है. Profit push inflation मैंने आपको ये भी समझाया. Raw material push inflation ये भी समझाया. इसमें example है, ये discuss करते हैं. For example, during the 1970s, OPEC countries क्या होती हैं guys? किसी को OPEC का full form पता है? अगर किसी को OPEC का full form पता है, write in the comment section. मैंने आपको बोला Venezuela is a part of the OPEC. Tell me what OPEC is. So Manmeet, I was asking what OPEC is. किसी को नहीं पता? मनमीत, I got this. No problem, मनमीत. मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, OPEC का फुल फॉर्म क्या है? Yes. So एक ने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. यस, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो हमारी ये जो पेट्रोलियम है, जो क्रूड ऑयल है, इनको प्रोड्यूस करती हैं. व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, ये लोग पहले ऑयल का प्राइस इंक्रीज कैसे हुआ? पहले क्या होता था, जैसे सऊदी अरेबिया में तेल है, सऊदी अरेबिया उसको 10 रुपए पर बैरल बेच देता था. ईरान के पास था, ईरान वुड से कि इंडिया को बोलता था कि ठीक है आप सऊदी से मत खरीदो, आप मुझसे खरीदो, मैं आपको 8 रुपए पर बैरल दे देता हूँ. ठीक है. उसी तरह कुवैत था, कुवैत बोला था नहीं आप मुझसे क्यों खरीद रहे हो, आप मुझसे खरीदो, मैं आपको 6 रुपए बैरल दे देता हूँ. अब वेनेजुएला के पास भी था, रशिया के पास भी था, रशिया बोलता था यार आप उनसे मत खरीदो, मुझसे 5 रुपए में खरीद लो. ठीक है. इस तरह से तब एट 70 से पहले क्या होता था, ऑयल का प्राइस बड़ा कम था. सडनली 70s में क्या हुआ, इन सब ने डिसाइड किया, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई ओपेक. ठीक है. जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि ओके हम सब अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे. हम क्यों सस्ते में बेच रहे हैं, एक प्राइस पे बेचते हैं, जिससे लेना होगा वो उससे लेगा, लेकिन हम सबको पैसा तो मिलेगा. एंड सडनली आप देखोगे 70s में क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया और इकोनॉमीज डिसरप्ट हो गई, क्योंकि इन सब ने कार्टेल बना लिया है, इन सब ने ग्रुप बना लिया. तो ये ओपेक की कहानी है. 70s में क्या, और ये क्या था, ये प्राइम एग्जांपल है हमारा रॉ मटेरियल इंक्रीज का. क्यों रॉ मटेरियल इंक्रीज का? डिसाइड क्रूड ऑयल रेट्स. yes Mohan, OPEC decides crude oil rates. Iran, Iraq, we have whole of the Middle East and Venezuela there. In USA also produces, Russia also produces, Kuwait also produces. Okay, so in this way ये example कैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऑयल यूज होता है और ये हमारा रॉ मटेरियल है. जब 70s में इसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो उससे क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी को शॉक मिला और उन गुड्स में जिनमें ऑयल यूज होता था उनका प्राइस इंक्रीज होना हो गया, क्योंकि पीछे से रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया था. तो ये हमारा रॉ मटेरियल पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डिसाइड इंक्लूड करते हैं. गॉट इट? आपको एग्जांपल समझ आई ओपेक की? आप सबको एग्जांपल समझ आई? ओके. तनवीर ओके. यस मनीषा, अनायत, अविनाश, दीक्षा, मनीषा, मनमीत. ओके गुड गाइस. सो ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है. स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मैंने आपको पहले समझा दिया एग्रीकल्चर का एग्जांपल देके, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सीपीआई पाएंगे. ठीक है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम रिटेल प्राइसेस को देखते हैं. ठीक है. और इसको कौन मेजर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. जो सीपीआई है ये पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO. ये एक ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में. हमने बात की थी कि कौन मेजर करता है इन्फ्लेशन इंडिया में. हम सब ने डिस्कस किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन.
और उसके नीचे दो हम इंडेक्स होते हैं, CPI और WPI। बट CPI कौन पब्लिश करता है? इसी के नीचे एक ऑफिस है जिसको CSO बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। शायद हम में से कोई एक बोल भी रहा था। ओके, सब डिपार्टमेंट, एग्जैक्टली। ओके, अनायत हैज रेज्ड हैंड। अनायत, व्हाट, प्लीज टेल मी। और टिल द टाइम अनायत हमें बताते हैं, आप सब एक काम कीजिए, राइट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एग्जैक्टली। आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट, मनमीत राइट, मनीषा राइट, दीक्षा, अविनाश, अनायत, आप सब लिखिए। अनायत, नो प्रॉब्लम, आप ये लिखिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अविनाश, ग्रेट अविनाश, गुड 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 गाइस, ये हो गया। इसका बेस ईयर क्या था? इफ यू रिमेंबर, हमारा CPI का बेस ईयर क्या है? रितु हैज नॉट आंसर्ड। रितु, बेस ईयर क्या है हमारा CPI का? गुड उमंग, ऋषि गुड, रियाज गुड, ओके रितु गुड, 2012। ओके, ये बेस ईयर हो गया। अब ये पब्लिश कैसे होता है? ये मंथली बेसिस पब्लिश होता है, ठीक है। CPI हमारा इस कैसे पब्लिश होता है? ऑन अ मंथली बेसिस। गॉट इट गाइस? इट इज पब्लिश ऑन अ मंथली बेसिस। वंडरफुल। कॉन्स्टिट्यूएंट CPI के, CPI में हम 8 आइटम्स रफली कवर, 8 कैटेगरीज। दीक्षा, टू एवरीवन, WPI वीकली, यस दीक्षा, थैंक यू। जो WPI है वो हम वीकली पब्लिश करते हैं और CPI हमारा मंथली होता है, ठीक है। CPI पे लौटते हुए हम बात करते हैं कि CPI में 8 कैटेगरीज की कमोडिटीज होती हैं। ये क्या है? ये हमारे डोमेन से बाहर है, हम इसको नहीं करेंगे, बट यू रफली रिमेंबर कितनी कैटेगरीज में कमोडिटीज को हम ये करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं 8 कैटेगरीज में। और कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं? 448 रूरल में, 460 अर्बन में। नॉट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू आर डिस्कसिंग आपको पता होना चाहिए। कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं गाइस हम टोटल कमोडिटीज को CPI के अंदर? टेल मी। 8। एवरीबडी ऑफ यू हैव टू राइट। ओके ओके, तनवीर, ओके ग्रेट, ओके उमंग, ओके गुड गुड, ओके। ये हमारा CPI हो गया, ओके। ओ, ये WPI का हमारे पास स्लाइड पे है। क्या हमारा बेस ईयर WPI का है? 2011। क्या है हमारा WPI का बेस ईयर? ऑल ऑफ यू राइट, WPI का बेस ईयर क्या है हमारा? क्लास पढ़ा रहे हैं। ओके, क्लास पढ़ा रहे हैं अभी वो। 5 मिनट में आपको करेंगे फोन। ओके, 2011, गुड गुड गुड। अबे what's the time? We just find out. Okay, 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 okay. So wholesale price index again. Yeah, Mohan, 2011. Guys, is this enough for the day, or you want me to continue? Tell me. Rishi is saying enough. All of Tanveer is saying yes, sir. Please continue. But Tanveer, I want all of you to let me know. Most of the people are saying for the day. I want to hear from Diksha as well, Manisha as well, Manmeet as well, Ritu as well, Mukul also, Umang, okay. Diksha and Ritu, tell me, and Mukul also tell me. Okay. Anayat, okay. So most of the people are saying that's enough for the day. Okay. Okay, okay. Okay, then you're also saying now that's enough for the day. I think we have discussed a lot. And today we have repeatedly revised also. It is not that we did it in one go. I'll give you, again, we'll discuss one, in 2 minutes.
we started with what? हमने कैसे start किया? हमने inflation से बात की. You people know what definition of inflation is. हमने बात की deflation के बारे में, हमने बात की stagflation के बारे में, और हमने आपको assignment दिया reflation के बारे में. Okay? हमने फिर disinflation के बारे में बात की. Okay? फिर हमने बात की कि इन्फ्लेशन कितने टाइप्स की है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस के पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट पे हमने क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब हमने डिस्कस किया. ओके, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात किया. 3 टाइप के थे. हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी, हमारे पास दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी, हमारे पास स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन थी. ये भी हमने डिस्कस किया. फिर हमने सीपीआई पे आए. सीपीआई पे हमने देखा उसका बेस ईयर 2012 है, डब्ल्यूपीआई का 2011 है. सीपीआई कौन रिलीज करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है. सब ऑफिस अंडर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो किया हमने. ठीक है. तो और हमने और क्या, ये हमने डिस्कस किया. मंथली बेसिस पे सीपीआई होता है, वीकली बेसिस पे डब्ल्यूपीआई आता है. बेस ईयर 2011 है डब्ल्यूपीआई का. सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस. किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनीबॉडी? किसी को प्रॉब्लम हुई? राइट? नो. अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ऑफ यू. Okay, great. Tanveer, thank you. Great. Okay, now tell me, how was the lecture? Did you enjoy? Lecture was good or not? Tell me, how was the lecture? Umang, great. Thank you, Umang. Vivek, thank you. Riyaz, thank you. Okay, it was interactive. Wonderful. Thank you. Diksha, Mohan. Okay, Tanveer, dedicated, diligent. Thank you, Tanveer. With the good sir. Okay, now Weber will come. He'll discuss for 2 minutes. 1 minute. Only 1 minute. Okay. Goodbye. Take care. Have a wonderful day. We'll meet in next class and then we'll discuss.